फादर मदर का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने बताया अरे yes? my mom तो started dancing only when she got to know कि हाँ ये हुआ है, and my father was like, oh okay हो गया है, अच्छा then he jumped on the bed and So what nudged you towards UPSC? Was it your father or was it always the plan? नहीं, definitely my father has played a tremendous role in my life because he himself is an IITian and I am a Yeah. non-IITian, so that's that. तो वो आइडियल टाइम क्या होना चाहिए जब आपको एक बैकअप क्रिएट कर लेना चाहिए? देखो firstly तो I would say कि if you are entering into the field, Right. clear it in one go, Yeah. और else अगर आपका ego थोड़ा सा बड़ा है, you'll get stuck in the process. तो इंटरव्यू में एक एस्पेक्ट होता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिकली फिलिंग योर डैफ, क्योंकि डैफ इज व्हाट स्टीयर्स योर इंटरव्यू. मैंने जो अपने डाफ में लिखा उसको मैंने जिया हुआ है, तभी मैंने उसको लिखा. Yeah. जब मैं बताना स्टार्ट किया देखो कि भाई कहाँ कहाँ जा रहे हो? हाँ, बस इतने करो. सारे हो गए. तो जब इंटरव्यू रूम से बाहर निकले हाँ तब कैसी फील थी? मतलब a lot of people were stressed कि यार नंबर नहीं देती हैं वो ये ऐसा नहीं देता वैसा नहीं देता. I was like देखो मैं आया हूँ तो मैं अच्छे से बोल करके जाऊंगा, जितना आता है मैं बोल के जाऊंगा, स्माइल करके जाऊंगा, बढ़िया इमेज छोड़ के जाऊंगा. Unacademy. Let's crack it. Hello and welcome to Unacademy IS. Success isn't a sprint, it's a daily grind of grit and consistency. And if there is one person who embodies that spirit, it's our guest today, Vaibhav Vishal, All India rank 819, UPSC CSE 2024. Congratulations, Vaibhav. Thank you so much. How has this journey been? It's been incredible. Incredible. Yeah. How is the feeling when you saw your name first finally in the list? Yeah, so my hands were trembling that moment, and they kept on trembling for another 20 minutes when I saw the result. Took a lot of time to process that, okay, this has happened. Then I think after 20 to 30 minutes, I went out and told my parents. It settled down. Yeah, settled in. And now it has been quite many days. Yes. Has it synced still, or it's still going on? To a certain extent, yes, the feeling has sunk in now, but I would say that there are certain things which I'm still feeling. I'm feeling new about that. There's something which is going on in the life which is completely new, unexplored. That's what I wanted to ask. Is it feeling liberation, celebration, or just a sweet sleep now? I would say all three of them. So it's an intersection of all three. Liberation because I don't have to give any more exam. Celebration because obviously it's a success. And the third one, I can sleep peacefully. Yes. It's a different thing that I haven't been able to get a lot of sleep because of other reasons. But I am very peaceful right now. How is the family reacting? Their reaction is pretty good and everyone is happy. Obviously, my father is getting too much of attention and mom is also being praised by her friends and all. So they're happy. Father mother का first reaction क्या था जब आपने बताया? अरे yes. My mom तो started dancing only when she got to know कि हाँ ये हुआ है, and my father was like he was fast asleep afternoon nap. So I was like कि हुआ है ये, क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? Oh okay हो गया है, अच्छा. Then he jumped on the bed and like oh. Then they finally realized हो गया, अच्छा हो गया है. Okay, Vaibhav. Yeah. Please tell a brief journey like your schooling, graduation, and this UPSC journey. How many attempts, means all everything. Sure. So I belong to a district called Nalanda in Bihar. Okay. The town being Bihar Sharif. But I have been raised most of my life in Patna. Okay. Yeah. So basic schooling, 10th grade, 10 CGPA from CBSE board. 12th around 78%. Couldn't clear the JEE, but went to Comet K through a college in Karnataka. Okay. MS Ramaya. From there, I graduated in from MSRIT. I graduated in Information Science and Engineering, a sister branch of Computer Science and Engineering. Okay. And then I got placed in two companies, JP Morgan, which was headquartered in Bombay, and Fidelity Investments in Chennai. I chose neither of them, and I chose to go the hard way or the tough way. That was a very brave definitely. decision. And the decision was in 2016, and 2025 was my final year. Okay. So tell us also about your brief UPSC journey. How many attempts it has been? Yeah, so as I was already mentioning, this has been my 9th and final attempt. Okay. And this was my 4th mains, first interview. First interview? Yep, first and last. So it has been a quite long journey. Yeah, it has been. How did you decline the lucrative offers of a company like JP Morgan? See, to a certain extent, there was always the idea of clearing UPSC was always in the back of my mind that I have to do this. But initially when 2016 ka time I'm telling you, so that time the idea was to go with the flow for at least 2 years. We'll work with the corporate sector. And then after that, I might go for an MBA or UPSC. That is what you have thought initially? Yeah, I had thought initially that I'll go for an MBA, CAT karunga, and then I'll pursue UPSC.
But then my father was like that you are so talented, you have been well versed in English, ये वो, तो आप directly क्यों नहीं उतरते हो? I'm like कि ठीक है, but what's the point? He's like, don't waste your years, they might cost you later, तुम्हारी service लंबी रहेगी and all. वो अलग बात है कि मेरी journey थोड़ी prolong हो गई, but his idea was really nice. So I stuck along with that idea, and 2016 I didn't join either of the jobs, and then went ahead with UPSC का preparation only. Okay. So what nudged you towards UPSC? Was it your father, or was it always the plan? No, definitely my father has played a tremendous role in my life, because he himself is an IITian and I am a Yeah. non-IITian, so that's that. And he cleared engineering services ka exam not once but 5 times Okay. in his time. Yeah. Yeah, and forest service ka interview stage he has also reached. I think he got like 130 or some marks, so he missed his chance to forest service by a few marks. So he used to always say that जो मैं नहीं कर पाया वो तू करेगा, and also these things, the conversations were happening in the home. So basically, पापा का सपना. बिल्कुल. It was more of his dream rather than mine. So Yeah. I can always say that कि yeah, उनका ही सपना था. मैंने बस फुलफिल किया, मैं तो बस माध्यम हूँ. माध्यम हूँ. You are just the means. Yeah. Okay. Tell us about your first attempt. Were you idealistic, overconfident, So or just clueless like most of us? So I'll tell you about 2 attempts, which I consider to be the first one. First one, I was I think I was in like last year of my college, and just the graduation had happened, and 2016 में ही मैंने बस ऐसे ही एक बुक पढ़ के कि दे GS दिया. है, मैं दे देता हूँ, देख लेते हैं क्या होता है. And I think I attempted 55 questions. Center was also in Bangalore because my college was in Bangalore, so I was there. अच्छा था, मतलब the experience was nice, but I wasn't ready for it, so couldn't clear it obviously. The second attempt was my actual first attempt, where I had studied Full-fledged for preparation. full-fledged 9, 10, 11 months, and then I had I think I started preparing on 8th of August 2016, and then 17 का prelims भी हुआ, mains भी हुआ. Mains में I guess I got 740ish some marks, missed the interview call by a few marks, and then उसके बाद से journey चलती ही रही. उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ 0.66 नंबर से, देन फोर्थ अटेम्प्ट में 1 नंबर से, फिफ्थ अटेम्प्ट में जब कोविड आया था उस समय प्रीलिम्स हो गया. बट मेंस पे उस समय क्योंकि मैंने 2 साल इतनी ज्यादा प्रीलिम्स में, मतलब ऐसा फियर आ गया था कि प्रीलिम्स कैसे क्लियर होगा, सो आई स्टडीड लॉट ऑफ अबाउट प्रीलिम्स. I think I dedicated around 100 days for prelims in 2020, the COVID year, and the examination also happened very late. Yeah, it got delayed by 4 months. So couldn't clear the mains cutoff again. Then again, 2 बार prelims नहीं हुआ. 2023 and 24 were the only years where I gave the exam consecutively and wrote the mains consecutively. So those are 23 में भी I guess I missed mains का cutoff, and then finally 2024 was my year. Okay. Yeah. अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है. ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस. इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं. और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं. और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है. तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका. साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स. सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें. अनअकैडमी IS, India's best learning platform. Thank you. And since you talked about the first attempt in 2016, Yes. as far as I remember, that was the highest cutoff of UPSC in prelims also, 116 marks. Yeah. So it was. Yeah, so I have witnessed that phase where people used to say that net correct should be around 60 or 55 only, then you're in the safe zone. Yeah. Abhi to yaar, it's like 88, 90 it- is very much that if you're getting 90, then you're definitely in. In 2016, 2017, the talk was like 120 is the safe score. Yeah, 120 was a safe score. Yeah. So abhi to Now it's- the 100 is the most safest score. yeah, 100. I could say barely 95 is also a good Yeah, score. yeah. If you are getting anything above 90, 90, then you you're can in. start preparing Yeah, for you're preparing. means. Okay. So 4 mains and 1 interview. Yeah. What changed in the final attempt that you can assess See, that got you through? I would say that luck hasn't been a very good friend of mine. Yeah. So things haven't been as easy for me as they would have for anyone else. But that cannot be a justification for whatever Yeah, mistakes right, that I have right. done.
because So- that is not what in our hand. Yeah, that's We not can only some- control the controllables. Definitely. So that cannot be controlled. What I could have controlled was I could have wrote my answers better. Yeah. I could have had less confidence, or let's say less be overconfident जो मैं बन गया first attempt के बाद, because I thought okay, because I have scored 740 in my first means only 740 ish, Yeah. तो next attempt में तो यार मैं करके ही रहूंगा. but वो जो झटका लगता है ना, हाँ. then you are brought back to the ground. And यही इस Reality एग्जाम की hurts. ब्यूटी भी है Yeah, कि every time it's a new exam, Mhm. and if you have reached a particular stage, that does not guarantee कि next time भी तुम वहां तक पहुंच जाओगे. I'm going to You can decline. I'm going to share you an incident which has happened with me. So after the UPSC ka interview gets done, Yeah. you are divided into groups, about 8 or 10 people ka groups, and you're supposed to go for a medical board. Yeah. So we went for the medical board. There were around 7 more people along with me. None of them cleared after the interview. I was the Okay. only one in that entire 8 or 9 people that cleared the That interview cleared. ka stage and entered into the final list. So, and 2 or 3 of them were already in the service. So it doesn't make any sense. Like even if you are in the service, Yeah. that doesn't mean that you're gonna And we get it have again. people who are in the services, Yeah. and they reappear and they fail in prelims. Yes, That's the nature yes, of this That's exam. the nature of the exam. It's very unpredictable. If at all someone gets through in their first attempt, the luck factor has Luck to be factor very has to be. strong, very, very, very strong. So basically, controlling the preparation aspect, Yeah. one luck factor is always an element in this That preparation. is an element, but what we can focus upon is our karma. Yeah, We karma, can only right. focus upon our karma. Karma nivadikaraste. That's your adhikar. Right. So you have to focus, because we study ethics, but we cannot we don't implement it in Yeah, our lives. yeah. We are like यार हो नहीं रहा है, अरे हो नहीं रहा है, आप अपना काम करते रहो. कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा. Yeah, बिल्कुल बिल्कुल. अपनी गलतियां अगर नहीं मिल रही है तो ढूंढो, बिल्कुल. या किसी से ढूंढवाओ, ढूंढवाओ. और फिर उस पे काम करो. हम्म. क्योंकि अगर आप उसी पे जाओगे कि नहीं लक ही मेरा सिर्फ इस बार साथ नहीं दिया, then probably you will not make it next time also. हाँ, then definitely you'll be crying out loud कि नहीं next time भी नहीं होगा क्योंकि lucky नहीं है मेरा. Lucky नहीं है मेरा. तो Right. ऐसे नहीं होता है. You have to work hard, and I would say that people, you can learn a lot of things from other toppers as well. Yes. कि भाई content कैसे improve करना है and all, but patience and perseverance you can learn from me, okay? And patience and perseverance are the key hallmarks on which That's true. UPSC is built. That's true. So since you have a very long journey, काफी लंबी जर्नी चली 9 साल तक, कभी ऐसा मोमेंट आया जब फील हुआ कि आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट? Every fourth day, every fourth day you feel that something wrong is happening. Yeah. मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? Because all my friends, whether they were from school, whether they're from college, they were all settled either in Bangalore, Hyderabad. Some of them moved out of the country, states में चले गए ये वो. So I whenever like secretively mom का Instagram से कभी देखा photos वगैरह, पता चला अरे यार ये तो वहाँ घूम रहा है, ये तो नाइग्रा फॉल्स में है, ये तो पेरिस घूम रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पटना बैठा हूँ, यहाँ पे रूम के अंदर बैठा हुआ हूँ. तो And specifically when you have that background कि you declined the JP yeah, Morgan yeah, offer yeah, yeah. and you entered into preparation, Yes. और वो इतनी लंबी होती चली गई. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो वही आपको कभी कभी फोमो होने लग जाता है कि what exactly is going wrong. तो ये frustration तो आता था. So how did you bounce back? It's just that you have to keep focus. You have to have the focus that what you want to achieve in your life. Yeah. मेरा था Clarity I have of purpose is important. Yes, yes. I have left a corporate job, and I learned this from Ira Singhal ma'am when I started preparing. That time Yeah. she had topped the exam. She had left a very prestigious job at Cadbury. Yeah, So right. she was like, be clear, because she was prepared. She was having a time of her life in Cadbury. Same thing would have happened to me if I would have shifted to Bombay. South Bombay में रहने का मौका मिलता, ये वो अच्छी कंपनी है, बहुत तरह की चीजें मिलती, फैसिलिटीज मिलती. उसको छोड़ करके मैं पटना में आकर के मम्मी पापा के पास रह रहा हूँ, अपनी इंडिपेंडेंस को छोड़ करके कि नहीं भाई मेरे को डिसिप्लिन चाहिए, मम्मी पापा की मार चाहिए, डांट चाहिए, मतलब सब कुछ मैं खुद से एक्सेप्ट Right, कर रहा right, हूँ. right. तो कुछ तो सोचा होगा ना. तो मेरा था कि अगर मैं करूंगा, तैर के जाऊंगा तो पार निकल के ही आऊंगा. फाइनली भगवान की दया से और आशीर्वाद से हो गया. हो गया. Yeah. Since you said that your father was an IITian, Yeah. so जब ये जर्नी लंबी होती गई, did he ever say कि बेटा हो गया, बंद कर देना चाहिए तुम्हें? No. Those were my words कि अब हो गया, मेरे को माफ करो, अब नहीं हो पा रहा है. But he was like कि नहीं कर. Your father had that trust. He had the trust. I'm telling you, this result is all because of my father and mother, because they had the faith in me, which I also lacked. That there were times where I was very frustrated. They were like कि तुम कुछ भी करो, होना तो है ही तुम्हारा. इनका ही Yeah. विश्वास था कि आज हुआ है, जो भी हुआ है. I'm not saying कि बहुत क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, that's a debatable topic. But हाँ, जो भी हुआ है, it's 99.99% parents का है, 0.01% मेरी efforts है. Right. So since we know the nature of this exam, it's an unpredictable journey. It's an unpredictable exam. You can't be clear that you will clear finally. Surely. You can get stuck at various stages. Yeah. So how much is the importance of having a backup? See, And did you have any backup?
See, in my case, I would just like to clarify. मैंने since I'm from Bihar, तो बिहार Public Service Commission Okay. का exam I had been giving. Yeah. क्योंकि जब आपका prelims नहीं निकलता है and then you feel frustrated, so my father was like कि ठीक है BPSC का भी pattern लगभग same ही हो गया है, so you fill the form. मैंने भरा, हो गया. 64th में भी 68th में भी. तो I have Okay. to I had 2 jobs. मैंने किसी को join नहीं किया. ठीक है. तो मतलब मेरा बैकअप प्लान इफ वी आर सपोज टू टॉक अबाउट इट एज सच मेरा कोई था नहीं, बिकॉज मेरे को ये नहीं था कि मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए. मेरे को था कि यूपीएससी क्रैक करना है. अगर करूंगा तो ये करूंगा, वरना इट्स ओके, आई कैन मूव बैक टू प्राइवेट सेक्टर. मेरे फ्रेंड्स अगर कोई बिजनेस कर रहे तो उनको ज्वाइन कर सकता हूँ, उनके साथ कुछ स्टार्टअप कर लूंगा. कुछ नहीं हुआ अल्टीमेटली तो आप अगर आपके पास एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है तो यू कैन गो अब्रॉड, ऐसा कोई भी कर सकते हो, है ना. तो स्कॉलरशिप लेकर के बाहर जा सकता था. तो दैट वाज माय, आई वोंट से प्लान बी एज सच, बिकॉज आई वाज नेवर फोकस्ड ऑन प्लान बी. व्हेनेवर व्हाट हैपेंड कि बीपीएससी का रिजल्ट आ गया, सो अ लॉट ऑफ पीपल गॉट टू नो. Then everyone started asking कि भाई join कब करो. I'm coming from a Hindi belt region. You also from a Hindi belt region. So the सरकारी नौकरी is quite worshipped over there. Yes. So people were like कि join कब कर रहे हो. And whenever I said कि नहीं मैं join नहीं कर रहा हूँ, या फिर देखते हैं करते हैं, लोगों को टरका दिया हाँ कि बाद में करेंगे बाद में करेंगे. बाद में धीरे धीरे they started murmuring कि नहीं, I think something is wrong, something is fishy. This person is not joining. इसका मतलब है कि इसने fake किया अपना result. That also has happened. हाँ वो होता है मैंने. But then second time भी आ गया. They are like कि नहीं अब fake कितने बार करेगा ये बंदा. तो एक आध लोगों ने मेरे को ये भी बोला कि तुम बस एग्जाम क्रैक करते हो, तुमको जॉब नहीं करना है. मैंने बोला कि ठीक है, पढ़ने में मजा आ रहा है, आएगा मैं करूंगा, लेकिन अपने हिसाब का करूंगा. वही बात है ना, लोगों मतलब जो जनरल परसेप्शन है सोसाइटी में, वो लोगों को ये लगता है कि एक डिसेंट जॉब है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की अच्छी जॉब है, ये सब छोड़ के पढ़ रहा है. तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या इसको इंस्पायर कर रहा है, ये परसेप्शन रहता है लोगों के अंदर, इसीलिए वो आपके ऊपर डाउट करते हैं. तो जो आपने जो बैकअप के बारे में बताया, तो क्या एक आइडियल टाइम होना चाहिए when a person should think of a plan B when you are into this preparation and especially when your journey is going long? तो वो आइडियल टाइम क्या होना चाहिए जब आपको एक बैकअप क्रिएट कर लेना चाहिए? देखो, फर्स्टली तो आई वुड से कि इफ यू आर एंटरिंग इनटू द फील्ड, एंटर विथ अ फुल हैंड ऑफ ऑल द swords, spears and everything that you have. Clear it in one go. Or else अगर आपका ईगो थोड़ा सा बड़ा है, you'll get stuck in the process. Just like me or anyone else who is stuck for a very long time. I'm going to say this very loud and clear. Enter into the process, understand every bits and parts of it, even if it means that you are supposed to sit at home for 2 years. Sit at home, प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि जब तुम प्रीलिम्स में उतरो, एक बार में क्लियर हो, मेंस उतरो तो आपको आराम से 850-900 नंबर आ रहे हैं. इंटरव्यू दो, इंटरव्यू में भी आपके 150-200 नंबर आ रहे हैं, एंड यू क्लियर द एग्जाम एंड गो. क्योंकि एक बार प्रोसेस में फंस जाते हो, तो अभी भी मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, तो इट्स लाइक अ क्विक सैंड, दलदल जिसको बोलते हैं. इतना भयंकर दलदल है ना, एक बार घुस जाओगे आपको लगेगा कि यार मैं तो स्कूल में टॉपर था, मैं तो आईआईटीएन हूँ और बस निकलने वाला है, इस बार निकलने वाला, मैं तो एम्स से आया हूँ, मेरा कैसे नहीं होगा. वो ईगो ही है, ईगो है. आप निकल नहीं पाते हो, फिर आपको लगता है कि यार नहीं, प्रेस्टीज इशू हो गया है मेरा. फिर अब इसलिए बेटर है कि आप अगर आ रहे हो, क्लियर माइंड से आओ, एक बार में करो, निकलो. मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स दो. अगर नहीं हो रहा है, थिंक ऑफ अ प्लान बी, शिफ्ट. So when you didn't join BPSC, so was it like कि UPSC ही करेंगे वरना कुछ नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं था. I didn't make this my life. I still am a very jovial person. मेरे को मिलना जुलना, extroverted हूँ, तो मेरे को मिलना जुलना बहुत पसंद है. ये सब चीजें मेरा था कि अगर मैं छोड़ करके आ रहा हूँ, because JP Morgan was a very prestigious job. People who had joined along with me, my friends, they are at very senior most position right now. Sure. अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बहुत कुछ corporate life बहुत अच्छा enjoy कर रहे हैं, घर है उनके बैंगलोर में है, बॉम्बे में, कहाँ नहीं उनके घर है. बट उनको छोड़ करके अगर आ रहा हूं, तो आई कैन नॉट गेट सेटिस्फाइड विद समथिंग जो मतलब बाकियों के लिए बहुत अच्छा होगा, बट आई एम थिंकिंग कि मेरे को सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा व्हेन आई एम एट लबासना, उसके अंदर हूं. वो आज हो गया, तो अभी मैं सेटिस्फाइड हूं. इन केस कुछ खुदा ना खास्ता दूसरा कुछ होता, देखा जाता है, बहुत लंबी लाइफ है. ओके, लेट्स डेल्व इनटू दिस प्रिपरेशन साइकिल. योर ऑप्शनल ज्योग्राफी, हाउ डिड यू चूज इट? And specifically for the beginners, what criteria should be adopted before choosing an optional or finalizing an optional? Sure. So please reflect upon that. So there were 3 to 4 reasons for me choosing geography. Firstly, तो Ira Singhal ma'am ने, she was also from engineering background, she had chosen geography that time, तो geography का market थोड़ा उस समय गर्म था. Then secondly, content availability. Third आपका था कि मेरे तो जो computer science या information science है, that's not even available कुछ करने के लिए, तो उसका कोई use रह नहीं जाता है.
फोर्थ था कि तुम्हारे GS1 के बहुत सारे टॉपिक्स एंड GS3 के बहुत सारे टॉपिक्स आपके कंसिडरेबल ओवरलैप विद द जीएस ओवरलैप हो जाते हैं, तो ये सही लगता था। एंड मेरा पर्सनल इंटरेस्ट, बिकॉज मेरी हॉबी भी है रिलीजियस टूरिज्म, तो आई हैव बिन ट्रैवलिंग ऑल अक्रॉस इंडिया, तो मेरे को ज्योग्राफी थोड़ा सा इंटरेस्ट है, मतलब मेरे को हिल्स, डेजर्ट, ऐसा कोई जगह नहीं है इंडिया का टेरेन में जो मैंने मतलब कवर नहीं किया हो, थोड़ा देर के लिए भी सही बट किया हुआ है। सो बेसिकली अगर किसी को अपने बैकग्राउंड के अलावा कोई ऑप्शन सजेस्ट करना है तो दिस शुड बी द क्राइटेरिया कि फर्स्टली अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, मटेरियल, टॉपर कॉपीज एंड overlap with the GS subject because ultimately the cumulative cutoff will be made. या तो जितना हेल्प आपका ऑप्शनल जीएस में करेगा उतना ही बेटर है। हाँ, और आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी मैटर करता है। मान लो कुछ, अब आप ग्रेजुएशन में आपने इकोनॉमिक्स ली है बट आपको लग रहा है कि पबाड मेरा बहुत अच्छा है, आप पबाड पढ़ लो यार। हाँ, तो वही है कि आप इकोनॉमिक्स लेकर के घसीट रहे हो, इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आप बहुत दिन तक परसिस्ट नहीं करोगे, बिल्कुल बिल्कुल, और स्कोर भी नहीं कर पाओगे। हाँ। Okay, so let's come to the first stage, prelims. Very unpredictable, Yeah. very dicey. You have also faced failures in that stage. definitely. So what would you suggest कि क्या strategy होनी चाहिए, मतलब what's the ideal way to go for prelims? So if we divide it into two areas, तो Yeah. आपका मैं पहले CSAT की बात कर लेता हूँ। So since I'm from an engineering Yeah, background, I will CSAT come on to that because CSAT is a big dream killer. या तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा CSAT का भगवान के दया से कभी इशू नहीं रहा। Yeah. इन whichever exam I gave, whatever attempt, CSAT हमेशा मेरा क्लियर था, तो उसके लिए मैंने कभी कोई स्पेसिफिक ऐसी तैयारी भी नहीं की। हाँ, बट आई वुड से कि जब मैंने 2016 एंड 17 वाला अटेम्प्ट दिया था, तो साथ ही साथ मैंने नवंबर में जो कैट का एग्जाम होता है तो वो मैंने दिया था। तो आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत उसके एडवांटेजेस थे, बट वो अभी मेरे पास ऐसा कोई एडवांटेज नहीं था, मैं जाता था बना करके चला आता था। तो CSAT वाज नेवर समथिंग दैट आई वाज बॉदर्ड अबाउट। Okay. अब आ जाते हैं GS के ऊपर। बट CSAT में फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है या somebody is having failure या somebody is not comfortable, तो उसे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? मैं इंग्लिश के लिए तो सजेस्ट करूंगा पहले तो, क्योंकि आजकल मैथ्स का तो थोड़ा डिफिकल्टी थोड़ा अजीब सा होते चला जा रहा है। दे से दैट इट्स 10th ग्रेड बट आई डोंट फील दैट इट्स 10th ग्रेड। इंग्लिश के लिए मैं बोलूंगा कि देयर इज अ बुक कॉल्ड वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। आई एम सजेस्टिंग दिस एट एवरी प्लेटफॉर्म वेयरएवर पीपल आर इनवाइटिंग मी कि नहीं आप ये बुक पढ़ो, इफ एट ऑल इफ यू हैव अ वीक वोकैबुलरी, इफ यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश, तो आपको ये पढ़ना ही है। एंड इट्स अ वेरी एक्टिविटी, वेरी इंटरैक्टिव बुक। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप इसको नॉवल के जैसा पढ़ लोगे एंड यू विल फील कि नहीं मेरा हो गया। नहीं नहीं, आपको उसके साथ बनाने हैं, पेंसिल से मार्क करने हैं, बहुत सारी चीजें करने के लिए। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द कॉम्प्रिहेंशन एंड द इंग्लिश वाला जो आपके क्वेश्चंस आते हैं। मैथ के लिए तो यार बोलते तो हैं कि 10th ग्रेड के हैं, बट आई डोंट फाइंड इट वेरी रेलेवेंट दीस डेज। तो आई एम नॉट रियली श्योर कि मैं उसमें कैसे हेल्प करूं आपकी, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, तो वो जो ग्रेटर दैन और लेस दैन वाले क्वेश्चंस है तो वो मेरे को बनाने आते हैं। तो वो मतलब लॉजिक है मेरे पास, तो मैं उससे बना तो लेता हूं। मैं भी यही सजेस्ट करता हूं यहाँ पे जो नए लर्नर्स आते हैं, मैं कहता हूं कि if you are not comfortable with CSAT, then adopt a strategy कि reading comprehension, English को strong करो, then go for LR, logical reasoning, and if required, then go for maths question. And one more thing, like students are very uncomfortable in this area where we have to answer. We have given 80 questions. You don't have to answer all. You have to find those 50 to 60 questions जो आपको answer करके आंसर करके जो है आपको वहां से 66.66 नंबर का कट ऑफ आपको क्रॉस कर जाना है कि नहीं? अल्टीमेटली आपको टॉप नहीं करना है, टॉप थोड़ी करना है, आपको सिर्फ कट ऑफ पास करना है। पीपल आर लाइक कि नहीं ये नहीं बना, अरे छोड़ो, नहीं बना, आगे बढ़ो। प्रेस्टीज इशू मत बनाओ कि हाँ यहाँ पे डोंट स्टक टू अ क्वेश्चन। या डोंट स्टक टू अ क्वेश्चन, इवन इफ इट इज अ वेरी सिंपल वन। वंस यू गेट स्टक, जस्ट लीव इट, because you have barely, like वो तो बोलते हैं वहां पे भी अपनी ईगो मत लाओ कि ये पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ के आया हूं, इससे क्वेश्चन करके जाऊंगा। तो मेरी OMR भरने की जो कैपेबिलिटी है वो काफी स्लो है, तो मेरे को टाइम लग जाता था, तो 35-40 मिनट तो उसी OMR ही भर रहा हूं, तो इसलिए आपके पास टाइम बहुत कम बचता है। तो आपको देखना है, जल्दी करना है, तो you have to be very efficient, and for that PYQs are going to be of great help. Yes. Okay, let's come to the GS part. Sure. Please reflect upon some basic books or sources that you referred for prelims and the strategy of attempting the paper in the exam hall. So basic books, everything is available online. There is nothing more that I can add कि मैंने कोई ऐसी स्पेशल बुक पढ़ी है क्या जो बेसिक गाइडलाइंस You stuck to those NCERTs, one standard book. क्लास 6 से लेकर के 12 तक, old ones and then new ones. Okay. And I've read all of the books, क्योंकि मेरा थोड़ा सा लॉन्ग भी हो गया, तो इसलिए अब मेरे से आप नहीं कंपेयर कर सकते हो, but I have read all the NCERTs at least 20 to 25 times. Yeah. हाँ, तो क्योंकि मेरा लंबा चला था, तो इस वजह से। वरना फिर मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मैंने जब किया है तो भी उससे मतलब आपकी लंबी जर्नी गई, but you didn't maximize your resources. Yeah, I did. You stuck to your resources. Yeah. You have to limit your resources. I'm mentioning this again and again. You have to read one book 100 times rather than 100 books one time. Yeah. That is going to make the difference. You cannot just gather a lot of knowledge and then you know nothing. इससे better होगा कि you become the master of one book,
where even if someone asks कि class 6 के NCERT में on which page something is given, you are able to figure out कि अच्छा हाँ फलाने पेज पे ये वाला चीज दिया हुआ है. So that's the kind of information level that you should have regarding a book. क्योंकि प्रीलिम्स में भी क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसे वो क्वेश्चन सेट करते हैं, उनकी जो लैंग्वेज ऐसे रहती है, यू फील दैट अरे यार ये तो पढ़ा हुआ तो है पर याद नहीं आ रहा है, याद कहाँ नहीं आ पढ़ा रहा हुआ है, है। क्या ये था, वो whether lack it was of revision है। lack of revision है. And that can only happen when you have limited resources. अब आप 10-100 किताबें एक जगह खड़ी कर दोगे, बोलोगे नहीं मेरे को 30 दिन में सारी पढ़नी है, क्योंकि प्रीलिम्स में तो आदमी 30-40 दिन का ही फोकस रखता है कि हाँ भाई अभी लास्ट में प्रीलिम्स आ गया है, अब तो दन पढ़ना है पूरा, बट वो नहीं हो पाता है. इसीलिए आप मिनिमल सोर्सेज रखो एंड मैक्सिमाइज योर आउटपुट फ्रॉम दैट. So I also wanted to ask one thing that you also talked about once, importance of PYQs. I always say PYQ is the king. Yeah. You cannot go beyond that. You cannot skip it. Because Definitely. वो ही आपको बताएगा कि what is UPSC is asking, what is the UPSC's priority, and what type of questions they are setting, what is the theme. Surely. So how did you do the PYQs? So I cannot just, you already said it, one cannot emphasize more upon the PYQs because PYQs are the way of UPSC telling you what kind of language is going to be in the paper. Yes, right. Because आप कोचिंग का जो पेपर आ रहा है या टेस्ट सीरीज आ रही है उसकी लैंग्वेज एंड यूपीएससी की लैंग्वेज को कंपेयर नहीं कर सकते हो. कोचिंग वाला प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, आपको अपने नॉलेज को अप्लाई करना है. उसमें भी क्या हो जाता है कि व्हेन यू हैव 35 और 40 टेस्ट सीरीज पूरे के पूरे, तो आपको एक लैंग्वेज का आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये वाला जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था इसमें इस तरह की लैंग्वेज पे इस वाले इंस्टीट्यूट का जो है मटेरियल में ये वाला आंसर गलत ही होगा. फिर आप अगली बार ट्राई मारते हो, पीछे पलट के देखते हो, आपका आंसर अरे हाँ ये तो गलत, और आपका माइंडसेट उस पे सेट हो जाता है. यूपीएससी में आपको दिक्कत हो जाती है इसी वजह की. वो आपको तब करना है जब आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज पढ़ोगे, उसमें लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा मेरे को यूपीएससी में ना जाकर के देना, मैं तो टेस्ट सीरीज से मतलब ही नहीं है, मेरे को टेस्ट सीरीज की लैंग्वेज से मेरे को यूपीएससी में क्या इंटरेस्ट होने वाला है. तो वो लैंग्वेज समझने में यूपीएससी की पीवाईक्यूज आर गोइंग टू हेल्प. सो मेरा ये था, व्हेनेवर आई हैव क्लियर्ड प्री, तो 10 साल या मैं तो कहूंगा कि 20 साल के भी क्वेश्चंस जो है मैंने बिल्कुल बाय हार्ट किए हुए थे. एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया जो आपके पीवाईक्यू से आया हुआ है, यू आर इन. अगर और फिर वही 3-4 क्वेश्चंस अगर आप मिस कर गए तो आप, और उसी से हमें जिनको लोग कहते हैं ट्रिक्स या हैक्स, वो कुछ ट्रिक्स और हैक्स नहीं होते हैं, दैट इज द स्टाइल ऑफ यूपीएससी. ठीक है, अगर यूपीएससी को एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाना है, सो दे विल ऐड सम एक्सट्रीम वर्ड इन इट. ठीक है, तो उसी को आपको पहचानना है. बिल्कुल. अब लास्ट ईयर प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया इंपोर्ट्स नो एप्पल्स फ्रॉम यूएसए. सो how is it possible? You cannot verify this claim. But मतलब ये इतना वेग क्लेम था कि अभी कैलिफोर्निया एप्पल करके, कैलिफोर्निया आमंड्स करके जो है करिश्मा कपूर जो है एडवर्टाइजमेंट कर रही है, और सारे मतलब बाहर से ही फॉरेन से इंपोर्ट आता है. मतलब ये अगर आप एक जनरल अवेयरनेस भी रखो ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बुक्स. प्रीलिम्स इज समथिंग दैट यू हैव टू हैव अ जनरल परसेप्शन ऑफ एवरीथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. एक बार पूछ लिया कि कोई मशरूम रिलेटेड था कि कौन सा मशरूम है, हाँ गुची मशरूम, एंड दैट मशरूम वाज always that existed on Insta. And we are saying कि नहीं आप Insta से दूर रहो, है कि नहीं. तो थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस होना चाहिए. जनरल अवेयरनेस, कॉमन सेंस. अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में भी अवेलेबल है. ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस. इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं. और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं. और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है. तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका. साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स. सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें. अनअकैडमी IS, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. थैंक यू. करंट अफेयर्स, हाउ डिड यू कवर इट, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर. हाउ मच इज द न्यूज़पेपर रेलेवेंट for all the stages? Yeah. So firstly, newspaper I have been reading since 2013, The Hindu, because मैं कॉलेज में गया था तो मेरा था कि कभी ना कभी तो करना ही है. तो करना ही है, तो द हिंदू न्यूज़पेपर पापा ने बोला था कि स्टार्ट कर दो. मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, वो घर पे आता था, फेंक के जाता था, मैं पढ़ता था. तो वो मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ. अभी तो पिछले 10 दिन से नहीं पढ़ रहा हूँ, बट हाँ पढ़ता हूँ. तो वो रेगुलरली है, वो तो हैबिट हो चुका है कि हाँ भाई फर्स्ट पेज एडिटोरियल ये तो मिनिमम देख ही लेना है. तो ये तो आपको, अगर आप कोई नए बिगिनर हो, आपको बिल्कुल ही नोवाइस हो, नूब हो, तो आपको आना है इसके अंदर. तो आपको द हिंदू न्यूज़पेपर तो बिल्कुल पढ़ना ही है. मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक
बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग कह रहे हैं कि सर न्यूज़पेपर में बहुत टाइम लग रहा है, न्यूज़पेपर में कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए वो धीरे धीरे करके उनका न्यूज़पेपर से इंटरेस्ट चला जाता है हाँ। और वो उसको स्किप करने लग जाते हैं। नहीं तो वही बोल रहा हूँ ना कि न्यूज़पेपर में आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी वोकैबुलरी वीक है, वोकैबुलरी वीक है इंग्लिश में थोड़ी सी आप वो जो है थोड़ी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश लिखते हैं। हाँ, और सब्जेक्ट का भी आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है, अगर आप बिगनर हो और सिलेबस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यू वोंट अंडरस्टैंड कि आपके Anything. न्यूज़पेपर में प्रायोरिटी क्या है। Yeah, true. यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग, Yeah, yeah. इसीलिए वो टाइम लग रहा है। बिफोर एंटरिंग इन फॉर द न्यूज़पेपर्स आई वुड सजेस्ट कि आप सिलेबस कॉपी ले लो, उसके कीवर्ड्स को पहले पढ़ो, पहले 10 बार पढ़ो एंड 10 बार लिख लो। बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी कि एग्जैक्टली है क्या, गवर्नेंस है, ये है, वो है। बहुत सारे कीवर्ड्स है जो आपको याद हो जाएंगे। इकोलॉजी, तो इकोलॉजी में क्या है, इकोनॉमी में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आपको जब टर्मिनोलॉजीज याद रहेगी तो आप जब पेपर में पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये तो मैंने पढ़ा था। या क्योंकि आप जैसे अब इंटरनेशनल रिलेशंस का एग्जांपल ले लो तो देयर कैन नॉट बी an extreme change in the kind of relationship India and Pakistan have already are existing. मतलब वो नेगेटिव ही हो सकता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव के अप्रोचेस किए जा सकते हैं, बट एवरीथिंग इज नेगेटिव ओनली, है कि नहीं? तो वो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी होगी एंड सिलेबस कॉपी को हमेशा अपने सामने रखो। एंड द हिंदू न्यूज़पेपर, मैं आपको बता रहा हूँ ये एक बहुत बड़ा मिसगाइडेंस है। People start preparing, they are reading the NCERTs, they are going to the classes, बट उनके पास सिलेबस ही नहीं है, वो सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं उनसे एक बात बोलता हूँ कि when you go to a restaurant, what's the first thing that you ask for? They said menu. So I said menu. Syllabus is the menu of the UPSC preparation. It is definitely. It will tell you what is UPSC asking in the prelims and mains. So until unless you have the reading of the syllabus, you can't decide what to study. Definitely. So syllabus has to be on your table always. अरे I read the syllabus अभी 9th attempt में भी मैं पढ़ा हूँ कम से कम 7-8 बार मैं उसको पढ़ा हूँ, मैं 2-4 बार उसको लिखा हूँ कि हाँ भाई याद रहे कि मेरे को सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। और तभी आप हमेशा ट्रैक पे रहते हो। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता होता है कि ये मेरे सिलेबस का पार्ट है, ये मुझे पढ़ना है। Because the content available in the market is so huge, आपको अगर मान लो कि आप उसका बाउंड्रीज डिफाइन नहीं करोगे तो you're just gonna keep on studying and studying, कभी खत्म ही नहीं होगा। Yeah. Okay, Vaibhav, let's come to the mains part. Sure. Because that is what gets you selected. Yeah. That is what gets you a rank. So how did you cover the syllabus like GS 1, 2, 3, 4? Since you have mostly done your self-study. So did you make notes? Did you use compilations? So, separate notes for subject-wise or for GS paper-wise? So I'm not very good at note making. तो मेरे notes generally जो है वो पुराने साल के टॉपर्स के ऊपर ही बेस्ड रहते थे। Okay. तो ये सारी चीजें, मेरा अपना कोई notes as such, एक अगर इंडियन ज्योग्राफी जो मेरा स्ट्रॉन्ग फोटे है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के नोट्स जो है मैंने दूसरों से लिए हुए हैं। तो मेरे कोई ऐसे अपने खुद के जनरल नोट्स नहीं थे, मैंने उनका लिया था। उनसे मेरे मतलब 100% कॉपीड जो रहता है ना वो है कि हाँ भाई उन्होंने लिखा था, बस डेटा वगैरह जो टाइमली मैंने चेंज करना था वो चेंज किया था मैंने। Okay. So what was your score in mains this year? I think it was 725. 725. So I want to reflect on one of the paper, essay. Yeah. It has been 93. considerably low scoring. I don't know what's the issue. Why are people not able to score in essay? Either it's the UPSC marking pattern. So how did you cover the essays, or how did you wrote the essay? Was there a unique style of writing essay? So in my first attempt, I had got around 126 marks in essay. Okay. So I felt that I am a decent writer. Yeah. But this time they have given me around 93 marks. तो मेरे को लगता है कि अब पता नहीं उनको ऐसा लगा कि नहीं, you're not a good writer. ऐसा certify इस साल अब तो average score भी down हो गया। हाँ, because AIR 1 Shakti Dubey has also scored 100 marks. Yeah. But then you have also people who have scored 144 as well, right? तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि there is a polarized score. हाँ, बिल्कुल। तो see, UPSC का sometimes what happens, they do something extremely good to a few subjects, and for some subjects they are like, they will pull the leg of that subject. तो इस बार ऐसे का था, ऐसे में, और जैसे GS3 में वो कर रहे हैं, GS3 में स्कोर ही नहीं आ रहा है। बट एक टाइम मेरे को 108 भी आए हुए हैं GS3 में, तो वो भी एक अभी पिछले 3-4 साल से तो 80s में ही चल रहा है। अभी पॉलिटी में थोड़ा सा ठीक चल रहा है, बाकी बट क्या कहूँ, तो यही है यार। ऐसे के लिए तो आई वुड से मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, जो मैं करता था फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक, मैंने किया कि अगर मतलब आप डिलीजेंटली इसको फॉलो कर सको तो करो, तो अच्छी बात है। आप PYQ लिए, चार्ट खोला कि भाई PYQ में कौन से क्वेश्चन है, उसमें भी सेक्शंस डिफाइंड रहते हैं कि मैं इंडिया से पूछा है, वुमेन एम्पावरमेंट पे पूछा है, तो मैंने एक सेक्शन ले लिया, उसमें से एक ऐसे मैं पढ़ लिया कि उसकी टॉपिक क्या है। मान लो कि ड्रीम्स दैट डोंट लेट इंडिया स्लीप, ये एक टॉपिक है, मैंने पढ़ लिया। सोने के पहले मैं चला गया सोने के लिए, तो जब सोने के भी 15 मिनट का जो टाइम रहता है नींद आने का, सबकॉन्शियस माइंड एंटर करने का, इन दैट टाइम आई एम लाइक अच्छा ड्रीम्स दैट डोंट लेट इंडिया स्लीप में मैं ये लिख सकता हूँ, पॉलिटिकल एंगल ये रह सकता है, ऐसे करके मैं सो गया।
तो वो सारे टॉपिक्स जो है दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाते हैं। रह जाते हैं। फिर आप जब सवेरे उठते हो तो फ्रेशन अप होने के बाद, नहाने धोने के बाद जब मैं बैठा तो पहला मैं काम करता था कि मैं 1.5 घंटा वो ऐसे ही लिख लेता था। ओके। Yes, तो वो मेरा एक ये मैंने ट्रिक फॉलो करके रखी हुई थी कि हाँ मैं ये ऐसे लिख लूंगा तो मेरे को ये भी तो लगेगा। पूरा ऐसे लिखते थे या स्ट्रक्चर लिखते नहीं थे? नहीं, पूरा ऐसे लिख पूरा लिया ऐसे? मैंने, पूरा ऐसे लिख लिया, मतलब स्ट्रक्चर बना लिया एंड देन ऐसे लिख लिया एंड देन उसके Rough बाद draft बना के? हाँ हाँ पूरा ऐसे लिख लिया 1000 से 1200 वर्ड का एंड देन ओनली आई स्टार्ट माय डे। उसका नेक्स्ट था कि न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। Okay, okay. Next important aspect of means answer writing. डेफिनेटली। How did you do it? When to start? So please reflect on that. So I won't say कि start from day one itself, but yeah, there is no particular time for you to start answer writing because even now also if someone would say कि नहीं आप are you answer writing ready? I'm like no, I'm not because there's no particular time कि हाँ आएगा आज तो मैं he man बन गया हूँ या फिर Right. she woman बन गई हो, आज मैं जाना है, मैं मैदान में उतर जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। और वो होगा भी नहीं। वो होगा ही नहीं हम्म। क्योंकि आंसर राइटिंग आप घर के कंफर्ट में बैठ करके अगर आंसर लिख भी रहे हो सो घर के कंफर्ट में अगर लिख भी रहे हो तो यू लाइक कि 10 मिनट में भी लिख लेंगे। तो माय पॉइंट बीइंग कि आपको आंसर्स का लिखना भी आना चाहिए एंड देन वो 7 मिनट्स एंड 9 मिनट्स वाला कंसेप्ट भी आपको लगाना है कि 10 मार्कर जो है वो आपको 7 मिनट्स में लिखना है एंड 9 to 9.5 मिनट्स में 11 मिनट्स में आपको ये वाले लिखने हैं क्योंकि अगर वो नहीं लिखोगे तो फिर पेपर इनकम्प्लीट होगा आपका। एंड दिस वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आई हैड कि पेपर भी बहुत कभी-कभी कंप्लीट नहीं होता था, इस वजह से मेंस में लटक जाते थे। पेपर कंप्लीशन इज अ वेरी It's a very इंपॉर्टेंट good एस्पेक्ट। strategy, हाँ। सो अगर आप अपने मेंस के बारे में बता सकते हैं कि पहले इनिशियल मेंस में क्या प्रॉब्लम ये रही थी और क्या लास्ट अटेम्प्ट में जिसमें आपका फाइनली सिलेक्शन हुआ डिड यू सॉर्ट दिस प्रॉब्लम आउट? फर्स्ट अटेम्प्ट में तो यार मैं ये कहूंगा ना कि दो चीजें मेरे को ले डूबी। एक तो था मेरा ज्योग्राफी पेपर 1 फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने प्रॉपर्ली दिया था उसमें आ गया मेरे को 97, पेपर 2 में था Okay. 150। ओके। हाँ इतना डिफरेंस? इतना डिफरेंस था। अगर उस समय 97 के बदले अगर वो 127 होता है या 137 होता है? 137 रहता तो भी आईएएस होता। Yeah. तो खैर कोई बात नहीं। एंड सेकंड था कि एथिक्स, तो एथिक्स आई डिडंट गिव अ लॉट ऑफ लेट्स से अटेंशन टू एथिक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मेरे को लगा मॉरल साइंस जैसा हो जाएगा। लिखेंगे, कहानियां बोल देंगे, हो बल्कि जाएगा। एथिक्स में बहुत स्कोप होता है आपके पास हाई स्कोर करने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज किया नहीं तो उसमें भी लो स्कोर आ गए। ये दो सब्जेक्ट मेरे को ले डूबे, उसका हर जाना मेरे को लास्ट अटेम्प्ट तक भरना पड़ा। तो वही है कि यार आप फोकस्ड रहो, जैसे मैंने बोला ना कि तर्कश में सारे तीर ले लो एंड देन ओनली यू एंटर इन द मैदान। सो इनिशियली जैसे कि व्हाट वुड यू सजेस्ट जो बिगिनर्स होते हैं कि वो ये पूछते हैं कि आंसर राइटिंग सर कब स्टार्ट करें, कि सपोज उन्होंने पूरा सब्जेक्ट कवर होने के बाद स्टार्ट करें या एक पर्टिकुलर टॉपिक्स कवर हो गए उसको स्टार्ट करें? अरे नहीं तो आप ये करो ना यार, जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो क्लास 6 की एनसीईआरटी में भी जो है लास्ट में क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं हर चैप्टर के वाइज। हर चैप्टर के बाद तो आप उसको 150 वर्ड्स वाला या फिर 250 वर्ड्स वाला बना लो। राइट। कंटेंट आपको मान लो 6 क्लास में नहीं मिलेगा, 9th क्लास वाले में तो मिल जाएगा ना भाई कि हाँ भाई 150 वर्ड का आंसर लिखना है मेरे को। तो आप हिस्ट्री से स्टार्ट कर लो, जो History बेसिक start बुक्स कर है लो। उनसे स्टार्ट कर लो। और मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप क्लासेस ले रहे हो और सपोज कि एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है, सपोज पॉलिटी स्टार्ट हुआ और उसमें फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गया या प्रीएम्बल खत्म हो गया, तो उसका पीवाईक्यू ढूंढ लो बिल्कुल। और पीवाईक्यू को लिखो और उसके ऊपर कंटेंट प्रिपेयर कर लो इनिशियली और ट्राई टू अटेम्प्ट इट इन वन गो इन अ टाइम्ड फॉर्मेट। उसके बाद टाइम फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो घर में 15-15 मिनट लिखो बैठ करके, कौन रोक रहा है आपको। बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि वो इनर्शिया तोड़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कोई ऐसा राइट टाइम नहीं आएगा जब आपको लगेगा कि नाउ आई शुड स्टार्ट राइटिंग। There won't come a time. There won't come a time. I mean, मेंस के एक दिन पहले नहीं लगेगा कि आप आंसर रेडी हो राइटिंग के लिए। मैं हमेशा यही एक बात भी बोलता हूँ कि there will never be a time when you will feel कि this exam is under your control. It will never. Because it is controlling you. Yeah, it is controlling you, right? So ideally, how many tests did you wrote between pre and mains whenever you cleared prelims? I barely remember now, but Last there were attempt? multiple tests that I had written. But what I used to do was कि मतलब घर पे ही जो मैंने PYQs थे ना, तो उनकी बहुत सारी टेस्ट सीरीज मैंने लगाई, बहुत सारी, मतलब Okay. मल्टीपल टाइम्स मैंने PYQs को लिखा है लिखा है। बनाने के बाद, मल्टीपल टाइम्स इतना लिखा था कि मतलब ये ऐसे ही रहता था हाथ पूरा का पूरा। तो वही है, नंबर तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि ऐसा कि हाँ मैंने 99 टेस्ट सीरीज लिखी है क्या, बट हाँ इट वाज सिग्निफिकेंटली हाई। एंड टाइम पकड़ाना बहुत जरूरी है कि 3 घंटे में पेपर कंप्लीट हो, वो हो जाता है ना तो आपका सिलेक्शन तो गारंटीड रहता है। जैसे कि आपने भी वो प्रॉब्लम फेस करी है कि पेपर कंप्लीशन की, ठीक है, तो कैसे उसको एड्रेस किया था? मतलब राइटिंग स्पीड कैसे बढ़ाई थी या पेपर कंप्लीशन कैसे होना चाहिए? तो ये स्ट्रैटेजी है मेरी, मतलब इस बार भी मैंने फॉलो किया कि आप शुरुआत के 3 या 4 क्वेश्चन लिखो अच्छे से, देन आप आ जाओ 15 मार्कर में, उसके सारे 10 नंबर के क्वेश्चन, आई मीन 15 नंबर वाले सारे 10 क्वेश्चन कर लिए, ओके। एंड देन बीच में मैं लिखता था, क्योंकि क्या होता है कि पहले 4 क्वेश्चन में आपका इंप्रेशन पड़ जाता है एंड द एग्जामिनर आल्सो नोज कि लास्ट में तो हौच पौच हो ही जाना है ना। वो लास्ट में जो आपके 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, अगर आपने उसको ढंग से लिखा हुआ है तो चांसेस ऑफ हैविंग गेटिंग गुड मार्क्स और बेटर मार्क्स इन दैट इज सिग्निफिकेंटली हाई कंपेयर्ड टू 10 मार्क्स, क्योंकि 10 में अगर देंगे तो कितना 4 देंगे,
बहुत 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 अच्छा लिख दिया तो 5 दे देंगे, 7 दे देंगे, कुछ देंगे। हम्म, लेकिन यहाँ पे 15 मार्क्स है ना, 15 मार्क्स है तो आपको और जनरली 8-9 जो सेटअप भी एग्जाम का होता है हम्म। उसमें जैसे GS1 में एंड में सोसाइटी के क्वेश्चंस होते हाँ हैं, हाँ हाँ, GS2 में IR होता IR है, होता है तो वो GS3 में easy रहता इंटरनल है, सिक्योरिटी होता है, इजी रहता वो है थोड़ा इजी सा। रहता हाँ है हाँ और उसमें हाँ, स्कोप होता है डायग्राम बनाने का, मैप डायग्राम बनाने बनाने का, का। कुछ भी करने का स्कोप रहता है तो हाँ, आप उसको कर सकते हो, उसमें ज्यादा नंबर फेच होते हैं। तो ज्यादा ये मेरी नंबर फेच होते स्ट्रैटेजी हैं। थी कि पहले 4 क्वेश्चन में इंप्रेशन बना लो एंड देन लास्ट के 10 क्वेश्चन लिख लो, 14 क्वेश्चन हो गए। अब ये जो 6 क्वेश्चन है वो लास्ट में आते आते वेदर इट इज 6 नंबर 7 नंबर जो भी आपका है वो हॉच-पॉच होना ही है। लेकिन अगर जो हॉच-पॉच हो तो उसमें मेरे को मिनिमल डैमेज हो, डैमेज मेरा मैक्सिमाइज ना हो जाए, मिनिमल डैमेज हो कि हाँ भाई 10 नंबर वाला क्वेश्चन अगर गंदा से लिख रहा हूँ कोई बात नहीं, कितना काटेगा, 2 नंबर तो देगा, 1 नंबर तो देगा ना, वही बहुत है। अच्छा, एक चीज मैं प्रीलिम्स के बारे में आपसे पूछना चाहता था कि प्रीलिम्स में एक इशू होता है कि वी डोंट नो ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, वी ओनली गेट टू अराउंड 25-30 क्वेश्चंस ऑन अ वेरी गुड डे एक बार में, ठीक है। तो वो जो एलिमेंट ऑफ इंटेलिजेंट गेसिंग होता है कि एक क्वेश्चन को अप्रोच करना या करेक्टली आंसर करना जब आपको नहीं आता है, उसको कैसे करते थे? बिल्कुल नहीं आता है या तो बिल्कुल मत अटेम्प्ट करो। हाँ, अगर वो तो वाइल्ड गेस हो जाएगा। वाइल्ड गेस मत करो, वाइल्ड गेस उसको कभी छोड़ हमेशा दो। खराब रहता है। लेकिन अगर इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो यार ये ना एक अंदर से गट फीलिंग आती है आपकी कि अच्छा ये हो सकता है, इंस्टिंक्ट आती है, इंस्टिंक्ट आती है। वो तभी आएगा जब आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की भी रहे कि वो आप जब आगमन करोगे सोचोगे कि यार ये और तो उस पढ़ा हुआ इंस्टिंक्ट है। को ट्रस्ट करो। ट्रस्ट करो, क्योंकि क्या होता है कि शुरुआत में वो इंस्टिंक्ट आ जाती है, उसके बाद आप उसको जब कॉन्टेम्पलेट करने लग जाते हो ना कि यार क्या मेरी ये वाली इंस्टिंक्ट हाँ, सही है कि हाँ, नहीं, तो फिर आप गलत ही मार्क करके आते हो। मेरे साथ ये बहुत होता है। जब अगर ये पढ़ते के साथ आ गया ये आंसर, चीज मैंने भी फेस करी थी, और जैसे जिनकी लंबी जर्नी लंबी होती है, मैं उनसे सजेस्ट करता हूँ और मैं अपने आप पे भी अप्लाई करता था कि थिंक ऑफ दैट क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइमर बैठा है विद अ वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन, बिल्कुल। विद 8 to 10 months ऑफ बिल्कुल, प्रिपरेशन, बिल्कुल। हाउ विल दैट पर्सन अप्रोच? बिकॉज जब आपकी जर्नी लंबी होती है, योर नॉलेज इज मोर, यू हैव स्टडीड मोर, so you tend to think to 2, 3, 4 levels. Definitely. And UPSC is not asking that. Yeah. UPSC is asking just the basic first level. क्योंकि it is a very equalizer exam. It is providing equal opportunity to the first attempter and to the last attempter attempter also. as well, हाँ। तो उसकी माइंडसेट से सोचो कि वो कैसे सोच रहा होगा इस क्वेश्चन को, और वही आपको बताएगा कि उससे आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे किस लेवल तक सोच के इसमें इंटेलिजेंट गेस मारना है। तो ये मैं अपने ऊपर अप्लाई करता था, यही सही ये तरीका है, हाँ ये है बिल्कुल। Okay. So let's come to the last part, interview. Your first interview. Yeah, first and last. First and last after so much wait. Yeah. अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका, साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी IS, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। हाउ वाज द इंटरव्यू? किसका बोर्ड था? कितने मार्क्स मिले? बीबी स्वेन सर का बोर्ड था and Okay. marks I got 187. That's a very good score. Yeah, it is. I just hope that around 200 marks would have been given to me, तो ज़्यादा अच्छा लगा, but खैर कोई नहीं, जो मिला सो मिला। Yeah. My point being कि chairman sir was his actual words to be were कि I'm really impressed by the fact that you have traveled so much Yeah. and covered so many destinations that even we in our age haven't been able to do so. तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, अगर आप ही बोल रहे हो कि अच्छा that you are impressed, that means मेरा इंटरव्यू अच्छा जा चुका है। तो बस उसके बाद यही स्कोर आया। और ये भी इससे एक नोशन बस्ट होता है कि ऐसा नहीं है कि जो इतने अटेम्प्ट्स के बाद इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उनके पास कोई डिसएडवांटेज है। दे आर जजिंग यू प्योरली ऑन दैट 25-30 मिनट्स कन्वर्सेशन। आई एम द एग्जांपल ऑफ दैट। 187 मार्क्स अगर मेरे को मान लो कि जज करते कि 9th अटेम्प्टर है तो मेरे को नंबर कम देने चाहिए, 140 देने चाहिए। सो इंटरव्यू में एक एस्पेक्ट होता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिकली फिलिंग योर डैफ, क्योंकि डैफ इज व्हाट स्टीयर्स योर इंटरव्यू। तो उससे कैसे फिल करते थे आप? मतलब व्हाट वर योर हॉबीज एंड ऑल? प्लीज रिफ्लेक्ट ऑन दैट। तो अब तो स्ट्रैटेजी ही चेंज हो गई लोगों की, क्योंकि अब तो फॉर्म में यूपीएससी ने अभी ही मांग लिया है, पता नहीं क्या वो बात करेंगे, मेरे को तो अब आइडिया नहीं है। प्री के फॉर्म में ही मांग प्री के लिया, फॉर्म में ही मांग पहले तो लिया है। डैफ 2 में भरते थे। तो अब क्या है कि सीरियसनेस, जब आप डैफ 2 भरने के लिए जाते हो तो ओनली द पीपल हु हैव बीन फिल्टर्ड आउट, मतलब कि हाँ ये तुम क्रीम ऑफ द क्रीम है,
इनको पता होता है कि मेरे को जिंदगी में क्या करना है, तो मैं डाफ अपना अच्छे से भरूंगा, डाफ के सेशंस ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी तो 10 लाख लोगों ने फॉर्म डाला होगा, सबके सब सबने भरा होगा और कुछ ना सबने कुछ। बिना सोचे भर बिना दिया सोचे भर दिया है, काफी उनको लोगों पता ने। नहीं है कि सिंगिंग का अगर बोल दोगे तो क्या से क्या हो क्या सकता है हो आपके सकता है? साथ। हाँ, तो हाँ, right. तो मैंने जो अपने डाफ में लिखा उसको मैंने जिया हुआ है, तभी मैंने उसको लिखा। Yeah. तो मेरा है रिलीजियस टूरिज्म। तो भारत का जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, लार्जली मैं सारे लोगों को जा गया चुका हूँ। हूँ, लार्जली, मतलब ये तो नहीं बोलूंगी सबके सब, लेकिन हाँ लार्जली मैं जा चुका हूँ। तो इसीलिए जब उन्होंने पहला सवाल मुझसे किया, तो उन्होंने पहला सवाल तो किया कि नालंदा है तो नालंदा के बारे में कुछ बताओ, Yeah. कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है होम, तो वो बता दिया उन्होंने। एंड जब मैंने बोल दिया तो फिर दे बोला कि रिलीजियस टूरिज्म तुमने अपनी हॉबी लिखी है, तो वेयर एंड ऑल हैव यू बीन टू। जब मैं बताना स्टार्ट किया, दे बोला कि भाई कहाँ कहाँ जा कितना, रहे हो? हाँ, बस इतने करो। सारे हो गए। तो फिर द सेकंड क्वेश्चन वाज कि तुम्हारे ज्योतिर्लिंग कितने हुए? तो मैंने बोला कि 3 हुए हैं। ने बोला कि 12 के नाम बताओ, मैंने वो बता दिया। तो इस तरह से मतलब, तो क्योंकि मेरे को इसलिए आइडिया है क्योंकि मैंने उन सब चीजों को जिया हुआ है, मेरा है उसमें इंटरेस्ट। अब मेरे को देख करके लोग स्पिरिचुअल टूरिज्म या रिलीजियस टूरिज्म डाल देंगे, उनको पता कुछ नहीं है, तो वो दिक्कत हो जाएगी ना। तो एक्चुअली वो चीजें भरो जो आपने जी है, जो एक्चुअली जिसमें आप एंजॉय interest- करते हो, हाँ, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। बिल्कुल। सेकंड थिंग थी मेरी जिमिंग, तो मैं पिछले 1.5 साल से कर रहा था, ऑन एंड ऑफ तो मैं 6-7 साल से कर रहा हूँ, लेकिन 1.5 साल से मेरे को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था। तो बहुत सारी चीजें हैं कि हाँ भाई क्या होता है, वे प्रोटीन आइसोलेट और बहुत सारी चीजें और जो हम लोग खाते हैं, right. प्री वर्कआउट, और क्यों डेथ्स हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों का हार्ट फेलियर हो जा रहा है, किडनी वाला प्रॉब्लम हो जा रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, प्रोटीन का इंटेक, ये सब बॉडी मास इंडेक्स, ये सब मैंने रेडी करके रखा हुआ था क्योंकि मेरे को उसमें इंटरेस्ट है। एंड थर्ड वाज लिसनिंग टू ओल्ड हिंदी म्यूजिक। तो ओल्ड हिंदी म्यूजिक मेरे केस में जो था वो था 70s एंड 80s, ओके 17 एंड 80s वाला। लेकिन जब मैं मॉक्स देने के लिए गया, तो वहां पे जो बैठे हुए थे ब्यूरोक्रेट्स एंड पीपल हु वर टेकिंग द मॉक्स, दे वर लाइक कि नहीं, आप 30s वाले, दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस कि सी रामचंद्रन, मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था। 30s के 30s 40s के शमशाद बेगम के गाने सुनने लगे, वो सुनाने लगे कि भाई ये वाले गाने शमशाद बेगम के, कौन है शमशाद, मैंने नाम ही नहीं सुना है कभी। तो फिर क्या हुआ कि उस में जब मॉक में मेरे को हिट किया ना कि नहीं अच्छा ठीक है, मैंने कुछ ज्यादा वेग लिख दिया है, ये पकड़ सकते हैं मेरे को, तो फिर मैंने फिर से शमशाद बेगम, केएल सहगल, इनके भी गाने मैंने सुने बैठ करके, ओके उनके ऊपर रिसर्च किया, सी रामचंद्रन के ऊपर, आपके मुगले आजम के नौशाद साहब, और इन सब लोगों के ऊपर मैंने रिसर्च की कि आपने इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है, सबके मैंने बायोडेटास को निकाला, छान मारा, क्योंकि वो बेसिकली कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स, क्योंकि वो वेग हो गया था। एंड देन दैट आल्सो हेल्प, क्योंकि एक मैम थी, उन्होंने पूछा कि मुगले आजम के म्यूजिक डायरेक्टर बताओ, मैंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा फेवरेट ट्रैक कौन सा है, तो मैंने बोल दिया कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो देखो शी स्माइल, मैं स्माइल किया, तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है, इंटरव्यू बढ़िया निकल गया। तो बस यही सब था। तो मेरा इंटरव्यू आई वुड से कि 80% वाज बेस्ड ऑन माय 3 हॉबीज, 20% वाज माय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकॉज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड। ओके वो फीलिंग कैसी थी इंटरव्यू हॉल के बाहर जब खड़े होते हैं, प्यून आता है, यू हैव टू गो नेक्स्ट इन? या तो थोड़ा सा घबराहट तो लग रहा था, बट द बोर्ड मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल। मतलब वो आए, दे कि कुछ पीना है, खाना है, बैठना है, उठना है, कुछ दे डोंट ग्रिल मच, दे जस्ट कन्वर्स। नहीं, आई वाज लकी एनफ दैट आई वाजंट ग्रिल्ड। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट अदर्स, बिकॉज़ मेरे को बाद में पता चला कि दैट इज व्हाट माय एक्सपीरियंस आल्सो। हां, इट वाज जस्ट अ कन्वर्सेशन एंड इट वाज अ वेरी कॉर्डियल कन्वर्सेशन, नो ग्रिलिंग। तो जिनका हुआ होगा तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरा नहीं हुआ। उन्होंने, दे वर वेरी कॉर्डियल, वेरी जनरस पीपल, एंड दे वर लाइक कि हाँ ठीक है। हाँ, बट सीटिंग अरेंजमेंट जो हम लोग देखते हैं मॉक्स में ना, उससे बहुत अलग होता है। हाँ, तो उसके लिए तो थोड़ा सा तैयार है। आई वाजंट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मेरे को लगा अरे ये तो बहुत छोटा, ये रूम खत्म ही हो गया शुरू होने के पहले। वो है ना मुन्ना भाई वाला डायलॉग, उसी तरह का था। मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअली कोविड के टाइम था, तो उस समय बहुत डिस्टेंस पे बैठे हुए थे वो, और मास्क थे, शील्ड्स थी, एवरीथिंग, तो वो बिल्कुल डिफरेंट था। अब शायद बिल्कुल डिफरेंट होगा। बिल्कुल बहुत नजदीक बैठ, जैसे अपन दोनों बैठे हुए हैं, इसी तरह से वो इसी तरीके से बैठे हुए थे, और नजदीक ही गए लो। तो वही वाला हो जाएगा, घुसते ही रूम खत्म हो गया भाई, अब बाजू वाला भी रूम ले लेते। राइट। तो जब इंटरव्यू रूम से बाहर निकले, तब कैसी फील थी? रिलीव्ड, बिकॉज मेरे को पता था कि मेरा तो हो गया है, सही भी गया है। एंड देन आई वाज लाइक कि चलो अब इससे छुटकारा मिला, अब आई डोंट हैव टू स्टडी एट ऑल। वो अलग बात है कि फिर मेरे को बीपीएससी के लिए पढ़ना पड़ा, लेकिन आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, अब तो हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। मतलब फाइनल अटेम्प्ट में फाइनली यूपीएससी के हॉल तक चले गए। आई वाज रियली हैप्पी। मतलब अ लॉट ऑफ पीपल वर स्ट्रेस कि यार नंबर नहीं देती हैं वो बोर्ड, ये ऐसा नहीं देता, वैसा नहीं देता। आई वाज लाइक देखो, मैं आया हूं तो मैं अच्छे से बोल करके जाऊंगा, जितना आता है मैं बोल के जाऊंगा, स्माइल करके जाऊंगा, बढ़िया इमेज छोड़ के जाऊंगा। वही इंपॉर्टेंट भी होता है। मैं भी यही कहता हूं कि इंटरव्यू में वो कॉन्वर्सेशन है, आप जाओ, न्यूट्रल रहो, बैलेंस्ड रहो, ट्रूथफुल रहो, ठीक है, डिसऑनेस्ट मत होना। एक्सट्रीम ओपिनियन आपको नहीं रखना किसी भी चीज का। बहुत लोग जो है इंप्रेस करने के चक्कर में, 1-2 फ्रेंड्स मेरे बता रहे थे, मतलब वहां पे जिनसे मैंने बात की कि उनके पहले इंटरव्यूज में नंबर क्यों कम आ गए, दे बोले लाइक कि हमने कोई एक्सट्रीमिस्ट ओपिनियन दे दिया, कुछ भी। तो आप बैलेंस रहो, आपको ब्यूरोक्रेट बनना है, तो फिर उसी हिसाब का ही बोलो ना। Okay, Vaibhav, if you have to relive this journey, what are the things that you want to do differently? I would not want to. हो गया,
अब रिलीव तो नहीं हो पाएगा, नहीं relive करना है। मरने का शौक नहीं है मेरे को। Okay. What would you tell to someone who is on the verge of quitting? कि Quitting? अब नहीं हो रहा है मुझसे, I want to quit this journey. उसके लास्ट अटेम्प्ट है या नहीं भी है, but he is feeling that pressure कि अब नहीं हो रहा है, जाना है मुझे यहाँ से निकल के, उससे क्या बोलोगे? Because your journey is been like that कि you might have come on the verge of quitting, but you Several continued times. and you finally achieved it. Yeah. So I would say that you have to have trust in yourself, first of all. Talk to yourself whether you feel that you are going to make it or not. Yeah. Do not have any regrets whether you have left the process or whether you are in the process. Don't regret कि अरे मैं यहाँ हूँ, मम्मी पापा वहाँ है, मतलब आप फ्रेंड्स जो है वहाँ कर रहे हैं, कोई दूसरा क्या कर रहा है. Live in the moment. If you have left the process, don't think यार regret है, मेरे को वहाँ था 2 attempts बाकी थे, 4 attempts बाकी थे, और दे देता तो शायद हो जाता. वो हो जाता, वो अलग बात है, वो आप सोचते ही रह जाओगे, वो ख्याली पुलाव. Right. तो इसलिए ख्याली पुलाव मत पकाओ, करना है कर लो, मन को शांति मिल जाएगी कि हाँ भाई मैंने 6 अटेम्प्ट्स दिए, 9 अटेम्प्ट्स दिए, मेरे अब मैं थक गया, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ. लेकिन रिग्रेट मत रखना, चाहे आइदर केस, अगर आप यहाँ पे भी हो चाहे वहां भी जाने के बाद यार बच गया, हो जाता तो अच्छा रहता, कर लेता, तो वो नहीं. जो भी है या तो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लो, या फिर अपने से जो फुल स्टॉप लगाया तो उसको फिर हटाओ नहीं, वापस चले जाओ जिस भी दुनिया से आप आए हो, एंड बी हैप्पी देयर. हाँ, बी हैप्पी देयर. इट्स जस्ट एन एग्जाम, नथिंग एल्स. इट्स जस्ट एन ओवर ग्लोरिफाइड एग्जाम, दैट्स इट. Yeah. Okay. How did you cope up with the psychological issues like burnout, stress? उसमें फैमिली का रोल, फ्रेंड्स का रोल कितना था? सो फैमिली का रोल तो बहुत ज्यादा था, बिकॉज मेरा जो भी खुन्नस निकलता था मम्मी पापा पे ही निकलता था, बिकॉज आई एम अ सिंगल चाइल्ड. तो एंड देन आई हैव वेरी लिटिल फ्रेंड्स, बिकॉज मेरे जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली दुनिया के फ्रेंड्स थे, सो दे वर बैक इन बैंगलोर, एंड यू कैन नॉट बॉदर देम अबाउट दे विल नॉट कनेक्ट विद यू आल्सो. फिल्म्स नहीं हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा है, तो उनको मैं क्या बोलता हूं, उनको समझ में भी नहीं आता. एंड देन सिंस आई वाज स्टडीइंग वाया सेल्फ स्टडी एंड नो कोचिंग एट ऑल, तो मेरे को यहाँ यूपीएससी वाले फ्रेंड्स भी नहीं थे. ओआरएन में मैं पहली बार पैर तभी रखा जब मेरे को मॉक इंटरव्यूज देने थे, तो आई डिडंट नो एनीवन. तो मेरे पास कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं था कि जिसमें मैं फ्रस्ट्रेशन अपना निकाल सकूं, एक्सेप्ट मम्मी पापा. तो अगर गुडविल भी हुआ तो उनका ही, और गुस्सा भी गया तो उन्हीं के ऊपर. तो हाँ, बट फ्रस्ट्रेशन का मैं ये कहूंगा कि अगर कभी कभी ऐसा लगता था कि हाँ बहुत ओवरली फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, तो मैं घूमने निकल जाता था. और इसमें मम्मी पापा सपोर्टिव थे. कार ट्रिप से भी कराया उन्होंने, ट्रेन से भी कराया उन्होंने, तो कि हाँ आपको जहां चलना है चलो. तो अब कि मेरे को मंदिर लेके चलो ये वाला. तो हम लोगों ने बहुत सारी यात्राएं की. तो उससे आपको एग्जिट मिलता था जो इस... बिल्कुल, क्योंकि आप कहीं भी अच्छी जगह पे, मंदिर जनरली अच्छी जगहों पे ही है, अच्छे शहरों में ही है. तो जैसे जगन्नाथपुरी गए हम लोग, कार से 16-17 घंटे की ट्रिप करा के गए वहां पे, तो हम लोग जगन्नाथ के बाद पुरी के बीच में भी बैठे हुए हैं, तो बीचेस में गए तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं. फिर अपन कश्मीर भी गए, खीर भवानी मंदिर, दैट्स नॉट वेरी ऑफ बीट लोकेशन, जनरली द कश्मीरी पंडित्स ओनली गो, बट देन वी वर लाइक, मेरा था इंटरेस्ट कि नहीं मेरे को जाना है, माता का बुलावा आया था, आई जस्ट वेंट देयर. तो वहां पे गए तो ऑब्वियसली कश्मीर इज कश्मीर, सारी तरफ ब्यूटीफुल ही है, तो अच्छा लगता है. इससे आप रिजुविनेट हो जाते हो. राइट. एक बार अपने लास्ट अटेम्प्ट में जो आपको फील होता है कि मैंने कुछ तो डिफरेंट किया था अपने प्रीवियस अटेम्प्ट से, दैट गॉट मी थ्रू, इफ यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग, बिकॉज बहुत ज्यादा हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उस पे थोड़ा सा बताना. देखो यार, पेपर कंप्लीट हुआ, माइक्रो डायग्राम्स मैंने मैक्सिमाइज किए. मैक्सिमाइज मतलब लिटरली जहां भी हो सका, कोई भी चीज का पूछो, माइक्रो डायग्राम्स मैंने डाल दिए. अगर चोला है तो चोला मैंने पूरा इंडिया ना दिखा करके थोड़ा सा भी किया, मतलब पूरा इंडिया भी दिखाया, बट चोला दिखाया, चोला लेक दिखाया, साउथ एशिया में जो है उन्होंने थोड़ा सा एम्पायर बनाया, श्रीलंका में शैलेंद्र आए, ऐसे करके मैंने कुछ भी जितने माइक्रो डायग्राम्स हो सकते थे मैंने डाल दिया. GS1 की बात कर रहा हूँ. फिर केस स्टडी मैंने पूरी शीट बना करके, जितने केस स्टडी बोलो, केसेस जो है आपके केशवानंद भारती और ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, हाँ, कि कहीं भी आए कुछ भी आए, ब्रैकेट में मैं केस लिख दूंगा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आपकी, कि हाँ ये वाले GS2 में. तो GS2 में इकोनॉमी के लिए सारे की मैंने डेटा बैंक्स और आपकी जितने भी स्कीम्स है गवर्नमेंट के, MOFCI, फिर आपके क्या बोलते हैं मित्र पाक, ये सूर्य बिजली हर घर योजना जो भी था, हर घर सूर्य बिजली योजना, सॉरी हम फंबल कर रहा हूँ, वो सारी चीजें बिल्कुल मैंने लिखी हुई थी कि जहां भी आए, जैसे भी आए, कोट कर देना है. SDGs मेरे को याद थे कि 17 और 169 के भाई हाँ क्या क्या है, 17 वाले तो मैं कहीं भी कोट कर सकता था, तो वो एकदम मैंने बाय हार्ट करके रखे हुए थे. तो मेरा था कि हाँ भाई, क्योंकि मतलब ये सब चीजें आपके आंसर्स को थोड़ा डिफरेंटली बना रही है. वैल्यू एडिशन. आप हाफ नंबर का भी अगर बात करो कि कोई टीचर को लगा कि नहीं यार, जो इवैल्यूएटर उसको लग रहा है कि अच्छा ठीक है इसने SDG भी डाला हुआ है इसमें. राइट. एंड SDG 1 2 3 सबको याद रहता है, 15 16 17 याद नहीं रहता, 13 14 भूल जाते हैं, लाइफ अंडर सी, लाइफ ऑन लैंड, ऐसे सब चीजें भूल जाते हैं. तो वो सारी चीजें याद रखो जो बाकियों को नहीं याद है, है. तो वो ज्यादा सही रहता है. एथिक्स में मैंने बस यही किया था
कि कीवर्ड्स को मैंने फॉलो किया कि हाँ भाई कीवर्ड्स जो उसमें हैं एंड क्या क्या इसमें से हो सकता है, उन सारे को मैंने निकाले एंड उससे लिखा। एंड लास्टली मैंने हमेशा, अब ऐसा नहीं कि अगर मेरे को कोट लिखना है तो मैं बहुत लंबे वाले कोट, एलेनोर रूजवेल्ट वाले कोट, या नहीं, फिर नहीं, ऐसे नहीं। महात्मा गांधी ने भी बहुत सारे लंबे लंबे कोट Yes, लिए हुए, yes, उनको मैं yes. छोटे वाले, अगर ऑनेस्टी पे आया भाई कोई भी चीज तो मैं लास्ट में एंड कर दूंगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि दैट इज आल्सो अ कोट। Yes, yes, yes. डोंट डोंट थिंक कि ये बहुत जनरल है या सबको पता इफ है। इट इज नॉट लिखो। नेम्ड बाय समवन आल्सो देन दैट इज आल्सो फाइन, क्योंकि किसी ना किसी ने तो बोला ही ना, तो फिर वो आप लिख सकते हो। एंड या ऐसे में भी मैंने नंबर कम आए हैं बट लिखा तो अच्छा ही था। नहीं, कम नहीं आए हैं, एवरेज से अबव आए हैं। चलो तब ठीक सही है, अच्छी है। इफ यू से सो। ठीक है। डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू सेट अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और शुड योर पैशन डिसाइड कि आपको कब तक कंटिन्यू करना है इसको? 4 से ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए किसी को भी। 4 क्या, मैं तो बोलूंगा 2 से ज्यादा भी नहीं बढ़ने चाहिए, ओके। क्योंकि आप मतलब जवानी वेस्ट हो रही है आपकी यार। सही बात अगर बताऊं, किसी की भी हो, बेमतलब कि आप यहाँ पे इधर उधर Yeah. घूम रहे हो। तो वही मैं बोलता हूँ कि अपना फर्स्ट अटेम्प्ट ही बिल्कुल बेस्ट Last शॉट attempt दो, करो, first attempt बेस्ट is शॉट last दो। attempt, हाँ। उससे पहले जो कुछ कर सकते हो, जितनी प्रिपरेशन पे अपनी चेंजेस कर सकते हो, जितने लेवल ऑफ चीजें कर सकते हो, वो करके एंड गिव इट योर बेस्ट शॉट। बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद अगर लगा है, परसिस्ट कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम थोड़ी बहुत से रह गए हो, तो एक दो अटेम्प्ट में वो इंप्रूव होके यू विल गेट फाइनली सिलेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस यही कहूंगा यार, मैंने 20 से लेकर के 28 29 तक का फेज अपना देखा, एंड आई डेडिकेटेड एवरी सिंगल डे ऑफ माय लाइफ फॉर द पास्ट 1 decade या 9 years या 8 years फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर हो गया, बट खुदा ना खास्ता नहीं होता तो फिर क्या होता? फ्रस्ट्रेशन है कि नहीं? या कोई आप अपनी लाइफ को इतना एक बड़ा पोर्शन दे रहे हो, राइट राइट राइट। इतना ज्यादा भी नहीं देना चाहिए। 2 अटेम्प्ट्स करो, अच्छा लगे ठीक है, नहीं अगला निकलो। कोई अगला बहुत सारी चीजें, अपॉर्चुनिटीज चीजें करने हैं, की यार। right, right. इट्स इंडिया, यहाँ पे बाहर से कंपनीज आ रही हैं, आपकी इंडिया में अपॉर्चुनिटीज ग्रो कर रही है और आप सोच रहे हो कि यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। Yeah, तो right. एवरी डे इज अ न्यू एक्सपेरिमेंट, आप कुछ भी कर सकते हो, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। Yeah. Okay, Vaibhav, one last conversation about some rapid questions श्योर because this exam is about श्योरली randomness. श्योरली One line for Telegram groups, if you want to say. टू मेनी Too many. टू मेनी। Okay. Your most overrated UPSC book. I would say Ramesh Singh for economy, I guess. One book that you want to take to a deserted island, if you can. None. Take. None. No, please, sorry. I don't want to see any other book in my life. The weirdest advice that you ever received for regarding preparation. संस्कृत ऑप्शनल ले लो, किसी ने बोला था मेरे को। Topper's copy, treasure trove or stress bomb? बोथ, Both. Okay. मतलब देख के स्ट्रेस इसलिए आ जाता है कि मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ ऐसा, या फिर इनमें इन्होंने ऐसा क्या कर दिया। एंड ट्रेजर ट्रोव तो है ही, बहुत सारा चीजें आपसे उसमें मिलता है वहां मिल से। जाता Home or library? Where did you study? Preferred? Home. Okay. है। My desk, my room, nothing better than that. And last question, if not UPSC, then what? Something much better. Much better. Yes. Okay, Vaibhav, thank you very much. Thank you so much. Unacademy. Let's crack it.